بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ایس ٹی جی انسائٹس. آج ہم CS304 کے فرسٹ 5 لیکچرز کا بہت اچھے طریقے سے کنسیپٹ پڑھیں گے، پلس میں آپ کو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کی پریپریشن کرواؤں گی، جس کے اندر MCQs پلس شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن اچھے طریقے سے کور کرواؤں گی. اسٹوڈنٹ، ان 5 لیکچرز میں کوڈنگ بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے پریکٹیکل میں کوڈنگ آتی ہے اور نہ ہی آپ کی تھیوریٹیکل پیپر میں کوڈنگ آئے گی. اس میں سے بیسیکلی ہمارے پاس کنسیپٹ بلڈنگ ہے. اگر آپ ان 5 لیکچر کا بہت اچھے طریقے سے کنسیپٹ بلڈ کر لیتے ہیں پلس پریکٹس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ، یہ ہماری جو CS304 کی بک ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بک ہے، جسے ہم اوپس بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آبجیکٹ کی ڈیفینیشن ہے. تو آبجیکٹ از اے تھنگ وچ ہیو سم کوالٹیز اینڈ ایٹریبیوٹس لائک نیم اینڈ فنکشن. تو آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں اور اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، جس طرح سے فنکشن کا نیم. اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ایک پرسن ہے. تو پرسن کیا ہے؟ ایک آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک ہاؤس، ایک گھر، وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. ایک درخت، وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. اور کار. تو اسٹوڈنٹ، اب ان آبجیکٹ کے ساتھ ریلیشن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے پاس آپریشن ہے. جیسے اب علی لیوز ان ہاؤس، تو یہ جو لیوز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپریشن ہے. بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم نے آبجیکٹ کے ایٹریبیوٹس اور ان کا آپریشن آپس میں ان کی جو انٹریکشن ہے وہی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. جس طرح اب علی ڈرائیوز کار، علی اس طرح اسٹوڈنٹ ہاؤس کے ساتھ بھی علی کا ریلیشن ہے کہ علی لیوز ان ہاؤس. یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ آپ کو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت انٹریکٹیو وے میں آپ کو دکھایا گیا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ، ایوری تھنگ کین بی ٹیکن ایز این آبجیکٹ دیٹ بہیو سرٹنلی وے اینڈ ہیز اے سرٹن ایٹریبیوٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز آبجیکٹ کے طور پر کام کر سکتی ہے جس کا ایک مخصوص وے ہے اور اس کے مخصوص ایٹریبیوٹس ہیں. اسٹوڈنٹ، آپ ایٹریبیوٹ کو کسی بھی چیز کی خصوصیات کے طور پر لے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ، اس پروگرامنگ میں ہم ریئل ورلڈ سینیریوز کو لیتے ہیں اور اپنی پرابلمس کو سولو کرتے ہیں. تو اوپس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ریئل ورلڈ پرابلم کو سورٹ آؤٹ کریں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کنسنٹریشن جو ہوتی ہے، ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ آبجیکٹس پر ہوتا ہے. اوپس میں ہم آبجیکٹس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں، جبکہ پروسیجرل پروگرامنگ جو کہ ہم نے CS201 میں پڑھی ہے اس کے اندر ہم فنکشنز اور مین کے اندر کام کر رہے ہوتے تھے. ہم فنکشن کا کوڈ لکھتے تھے، پھر انہیں کال کرتے تھے مین میں. تو اسٹوڈنٹ، یہ ڈفرینس بہت انپورٹنٹ ہے. آپ سے MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ اوپس میں ہمارا کنسنٹریشن کس پر ہوتا ہے؟ تو اوپس پر ہمارا کنسنٹریشن آبجیکٹس پر ہوتا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ماڈل. تو اسٹوڈنٹ، ماڈل کو ہم امیجینیٹر بھی کہتے ہیں. جیسے ہی آپ کے ذہن میں امیجینیٹر کا لفظ آتا ہے تو امیجینیشن. ٹھیک ہے. جس طرح ماڈل از اے ایبسٹریکشن. ماڈل کیا ہے؟ ایک ایبسٹریکشن ہے، ایک تخیل ہے، ایک تصور ہے آف سم تھنگ ریئل اور کنسیپچول، جو ریئل بھی ہو سکتی ہے، کنسیپچول بھی ہو سکتی ہے. جیسے اسٹوڈنٹ، آپ یو آر اے پرسن، یو آر اے بوائے اور گرل، تو یہ آپ کی ریئل پریزنس ہو گئی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ، ریئل ماڈل. اور اس طرح کنسیپچول ماڈل کیا کہ یو تھنکس پازیٹیو، یو وانٹس ٹو گیٹ ہائی گریڈس اور ہائی CGPA. تو یہ آپ کی کنسیپچول ہو گئی. تو اسٹوڈنٹ، ایسا کوئی بھی ماڈل جس کے اندر ہم ان دونوں چیزوں کو پڑھتے ہیں یہ اوپس میں ڈیفائن ہوتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ، ہائی وے کے لیے جو میپس ہوتے ہیں یہ اس کا ماڈل ہے. آرکیٹیکچر ماڈلز ہوتے ہیں. اس کے بعد میکینیکل ماڈل جن پر ہم گاڑیاں وغیرہ بناتے ہیں، اوپس ماڈل. تو اسٹوڈنٹ، یہ ہم اوپر بہت اچھے طریقے سے کور کر رہے ہیں. اس کو پڑھنے کی ایز اٹ از آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایگزامپل آپ کو پھر سے وہی سمجھایا گیا ہے کہ اب یہ جو ایگزامپل دی ہوئی تھی اس کے اندر ہمارے پاس آبجیکٹ کیا تھا؟ آبجیکٹ علی کار ہاؤس تھا. اور انٹریکشن کیا ہے کہ علی گھر میں رہتا ہے اور علی کار کو ڈرائیو کرتا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ، اگر ہم دیکھیں تو یہ ایگزامپل ہے. یہ آپ کو کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک شارٹ سی ایگزامپل کر چکے ہیں، وہی آپ کے لیے انف ہے. تو ہمارے پاس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ کے؟ سب سے پہلے تو ہمیں بلڈنگ آسان ہو جاتی ہے. ہمارا جو آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل ہے اس سے ہم بہت آسانی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ کلاسز. اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ، یہ آگے ہم پڑھیں گے، ابھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو
हमारे पास मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है और रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज होते हैं, इस वजह से हर कोई इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है और ना ही इसका कोई बहुत टफ किस्म का सिंटैक्स होता है। इसके बाद स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगी। नंबर 1 उसकी स्टेट होगी कोई, ठीक है। नंबर 2 पर उसके वेल डिफाइंड बिहेवियर होगा, जैसे उसके ऑपरेशंस। और नंबर 3 पर उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। किस तरह स्टूडेंट, अगर हम स्टेट देखें तो अली की स्टेट क्या है? अली की अगर हम स्टेट देखें तो उसकी एज, उसकी लुकिंग, उसकी आइज़, ये उसके क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट उसके ऑपरेशन क्या हैं कि अली खाता है, अली पीता है, अली चलता है, अली स्टडी करता है, ये इसके ऑपरेशंस हैं। और यूनिक आइडेंटिटी क्या कि उसका नाम अली है और इस तरह वो यूनिक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी 2 तरह के होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल कहते हैं। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, उन्हें हम इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट, ये एग्जांपल आपको बार बार दी गई है कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें एट्रीब्यूट्स, तो हमारे पास क्या है? नेम और एज। और हम इसके बिहेवियर देखें तो वॉक एंड ईट। तो ये नेम और एज ये भी हमारे पास क्या है? कंसेप्चुअल है। और इसके बाद हमारा वॉक और ईट ये भी हमारे पास कंसेप्चुअल है। स्टूडेंट, इनटेंजिबल में क्या आता है? अगर हम देखें टाइम, तो टाइम को हम टच कर सकते हैं? नो। टाइम को हम काउंट कर सकते हैं? टाइम हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। जिस तरह अब टाइम को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सेट आवर, गेट आवर, सेट सेकेंड, सेट मिनट्स। तो इस तरह स्टूडेंट ये भी हमारे पास है कि हम ईयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, ना ही इन्हें हम देख सकते हैं। जैसे अब ईयर को किस तरह कर सकते हैं? सेट ईयर, गेट ईयर, सेट डे, सेट मंथ, इस तरह से। तो स्टूडेंट अब इसकी हम समरी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज अचीव यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन है, तो ये किस तरह हासिल होगी? ऑब्जेक्ट को और रिलेशनशिप को यूज करते हुए। प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड यूजिंग डेटा मेंबर्स। जो भी उसकी खसूसियात हैं उन्हें हम डेटा मेंबर से प्रिस्क्राइब करेंगे, जबकि जो इसके बिहेवियर्स हैं उनको हम फंक्शन के तौर पर डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन हाइडिंग ऊप्स का सबसे अहम असूल है जो हकीकी दुनिया में से लिया गया है। इसका मतलब तमाम मालूमात हर किसी को दस्तयाब नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है, शोइंग ऑल दोज डिटेल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर की दुनिया में सिर्फ वही चीज़ें दिखाओ विच आर नेसेसरी, जो ज़रूरी हैं बाहर की दुनिया के लिए, एंड हाइड ऑल अदर डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, आपका फ़ोन नंबर आपके फ़ोन की सिम कार्ड में महफूज होता है। कोई भी बराह रास्त आपकी सिम से आपके नंबर को नहीं पढ़ सकता। इस तरह आपका ईमेल, तो स्टूडेंट ईमेल सर्वर लाखों लोगों का डेटा रखता है, लेकिन आपको सिर्फ आपका डेटा दिखाता है, किसी और का नहीं। तो स्टूडेंट इसका फ़ायदा क्या है? इससे सिस्टम बहुत सादा रहता है। हम अपने मुस्तकबिल में ऑब्जेक्ट्स के काम करने की इम्प्लीमेंटेशन भी बदल सकते हैं, तो बाहर की दुनिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि हम इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हैं बिना हमारी इंटरफेस को चेंज किए। तो स्टूडेंट यही तमाम एग्जांपल समझाई गई हैं। अभी मैंने आपके सामने सबसे पहले हमारे पास ये MCQs आ सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो स्टूडेंट ये MCQs आपका द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है कि कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करती हैं? इंफॉर्मेशन हाइडिंग का प्रिंसिपल यूज़ करती हैं। तो ये MCQs आपसे बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट आपसे ये MCQs भी पूछा जा सकता है, हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल फ्रॉम द यूज़र। तो हम हाइडिंग में पढ़ते क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स की तमाम डिटेल को आउटर यूज़र से छुपाना। इसके बाद स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया, इट्स सिंप्लीफाई, इसकी हमारे पास एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? ये हमारी डेटा को सिंप्लीफाई करता है, हमारी जो प्रोमोगेशन है उसके अगेंस्ट एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे हमारा डेटा महफूज रहता है। इसके बाद है इनकैप्सुलेशन। तो स्टूडेंट इनकैप्सुलेशन वो तरीका है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को मुमकिन बनाते हैं। मसलन
स्टूडेंट जिस तरह एक बड़ा कैप्सूल जो कि हमारा एक बड़ा कैप्सूल जिसे हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं, वो कैप्सूल फिर से किसी अदर कैप्सूल में इनक्लोज हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट की तमाम डेटा और इसके फंक्शंस को एक ही यूनिट में बंद कर देना। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अली एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम, इसकी उम्र, इसके चलने और खाने की सलाहियत सब इसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा हैं। बाहर की दुनिया को नहीं मालूम कि ये मालूमात इसके अंदर कैसे महफूज है या वो चलने के काबिल कैसे हुआ। इसके बाद स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन में फ़र्क क्या है? आपने देखा कि ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा सेम है। मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दी कि इनकैप्सुलेशन एक बड़ा कैप्सूल है और उसके अंदर एक छोटा कैप्सूल है जो कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग इनकैप्सुलेशन के ज़रिए से ही हासिल की जाती है। ये एमसीक्यूज भी आपसे बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर आपको गिवन है डेटा एंड बिहेवियर आर टाइटली कपल्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो डेटा होता है और उसका बिहेवियर वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर टाइट होते हैं। जैसे अगर अली है तो स्टूडेंट उसका फंक्शन क्या है? वो चलता होगा और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आउटर साइड से हाइड हो जाती है। जैसे स्टूडेंट, आप क्या सोच रहे हैं, जैसे आपका नाम अली है और आप क्या सोच रहे हैं, ये आउटर वर्ड्स को नहीं पता। इसके बाद स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल्स को भी हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया अली की एज, अली का नेम और उसका बिहेवियर, उसके वॉक करने का स्टाइल, वो खाता है पीता है, ये तमाम उसके बिहेवियर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन का हमारे पास फ़ायदे क्या हैं। तो स्टूडेंट, इसके भी वही फ़ायदे हैं कि हमारा कोड सिंपल हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, कम्प्लेक्सिटी लो हो जाती है। इसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। तो इसके बाद स्टूडेंट, इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज अ सेट ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ही वांट टू एक्सपोज टू अदर। किसी भी चीज़ को हाइड करना वो हाइडिंग है, और इंटरफेस किसी भी चीज़ को शो करवाना, किसी भी चीज़ को एक्सपोज करवाना टू द अदर ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास इंटरफेस है। तो स्टूडेंट, आसान अल्फाज में आपका मोबाइल की स्क्रीन, आपके लैपटॉप की स्क्रीन, आपकी पीसी की स्क्रीन, वो आपके पास इंटरफेस है क्योंकि वो आपको इंफॉर्मेशन एक्सपोज करती है। इसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपसे इस तरह पूछा जाता है विच आर नेसेसरी फॉर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास इंटरफेस ज़रूरी है। जिस तरह स्टूडेंट अगर हम कार का इंटरफेस लें तो स्टूडेंट, उसके जो स्टीयरिंग है, उसका व्हील है, इसके बाद उसका एक्सेलरेटर है, अप्लाइंग ब्रेक्स, टर्न ऑफ ऑन। तो स्टूडेंट, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कार को कैसे चलाना है? तो उसका एक स्टीयरिंग होगा, ठीक है, वो उसका इंटरफेस। उसके बाद उसके ऑन ऑफ, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन्स लगे होंगे। इस तरह आपका जो फ़ोन है उसके अंदर इनपुट नंबर, हमारे पास इंटरफेस होगा, जहाँ पर इनपुट नंबर लिखा होगा वहाँ पर हम अपना नंबर डाल देंगे। इसके बाद प्लेस कॉल, अगर हमें कॉल करनी है तो उसके लिए भी एक छोटा सा लोगो बना होगा। इसके बाद स्टूडेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इट इज़ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब स्टूडेंट, इम्प्लीमेंटेशन वो एक्चुअल बिहेवियर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में किया जाता है। तो इन आसान वर्ड्स में स्टूडेंट, ये तमाम जैसे हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी एक कॉन्सेप्ट था, इनकैप्सुलेशन भी एक कॉन्सेप्ट था, इसके बाद इंटरफेस, ये भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ही है। तो स्टूडेंट, इन तमाम कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में लिखने के लिए हम कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे? लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, और वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने से जो कोड लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट, इसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट स्टेट दैट विल बी हाइडन फ्रॉम अस, इट विल स्टोर वैल्यू फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड डेटा। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर में वो ऑब्जेक्ट की स्टेट होंगी जिसे हमने हाइड करना है, और ये क्या स्टोर करेंगी? ये ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स को स्टोर करेंगी। इसके बाद है फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेंबर फंक्शन टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड बिहेवियर। तो हमें जो भी बिहेवियर चाहिए उसके लिए हम मेंबर फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गियर बॉक्स इन अ कार। तो स्टूडेंट, गियर बॉक्स में हम देखते हैं कार में ब्रेक पैडल
ایک انٹرفیس ہے، جبکہ امپلیمنٹیشن میں اس کی مشینری، بریک آئل، پائپس، بریک شو، یہ تمام چیزیں جو بریک دبانے پر پہیوں کو روکتی ہے، جو اصل فنکشنالٹی پرفارم کر رہی ہے، وہ ہماری کیا ہے؟ وہ ہماری امپلیمنٹیشن ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد یہ ایم سی کیوز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ ان دونوں کے درمیان فرق تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل گیا ہے کہ انٹرفیس جو چیز نظر آ رہی ہے اور امپلیمنٹیشن اس چیز کو یا اس بٹن کو دبانے سے جو پرفارم ہوگا وہ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن ہے. اس کے بعد ہے سپریشن آف انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن. تو یہ ٹاپک بھی آپ کا کور ہو چکا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہ ایم سی کیوز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دس از اچیوڈ تھرو دا کنسیپٹ آف انکیپسولیشن اینڈ انفارمیشن ہائڈنگ. تو ہم انٹرفیس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں امپلیمنٹیشن سے. یہ کس طرح سے ہمارے پاس پاسبل ہوا ہے؟ یہ اچیو ہوا ہے انکیپسولیشن اور انفارمیشن ہائڈنگ سے. تو اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کا موبائل کا پاور کا آن آف کا بٹن ہوتا ہے وہ جسٹ ایک انٹرفیس ہوتا ہے. اس کے اندر نہیں لکھا ہوتا کہ کس طرح سے جا کر آپ کا موبائل آف ہو رہا ہے اور کس طرح آن ہو رہا ہے. یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے جو کہ ہائڈ کر دی گئی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ میسج. تو میسج آبجیکٹ ایک دوسرے سے پیغامات کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں. جب ایک آبجیکٹ کسی دوسرے آبجیکٹ کا انٹرفیس فنکشن استعمال کرتا ہے تو اسے پیغام بھیجتا ہے. کس طرح اسٹوڈنٹ؟ اگر کوئی بھی آبجیکٹ کسی اور آبجیکٹ کا انٹرفیس فنکشن کو یوز کرتا ہے تو اسے پہلے وہ میسج کرے گا. جس طرح اسٹوڈنٹ عام ایگزامپل میں ایک شخص، یہ بھی ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے، ایک کار، یہ بھی ہمارے پاس آبجیکٹ ہے. تو اسٹوڈنٹ اگر ایک انسان کار کو روکنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بریک کو اسٹیمولیٹ کرے گا، اور جب بریک کو وہ دبائے گا تو کار کو میسج پہنچے گا اور وہ کار رک جائے گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایک شخص دوسرے کو کال ملاتا ہے تو اسے پیغام بھیجتا ہے. کیسے؟ اس کے بٹن کے ذریعے، یا پھر اس بٹن کو دبا کر، یا پھر اگر کسی نے کال اٹینڈ کرنی ہے تو کال کو پک کر کے. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ یہاں پر ہم ایک شورٹ سی سمری پڑھنے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، سمری میں سے آپ کو بہت ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں. تو پہلا ایم سی کیوز جو میں اوپر بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ انفارمیشن ہائڈنگ انکیپسولیشن کے ذریعے ہمارے پاس آتی ہے. انکیپسولیشن اور انفارمیشن ہائڈنگ ایک دوسرے سے بہت ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہ ایم سی کیوز بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن کو سیپریٹ ہم کس سے کر سکتے ہیں؟ انفارمیشن ہائڈنگ سے کر سکتے ہیں. اور آبجیکٹ کمیونیکیشن کس کے تھرو کرتے ہیں؟ آبجیکٹ کمیونیکیشن میسج کے تھرو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیکچر نمبر 3. لیکچر نمبر 3 کا ٹاپک ہمارے پاس ہے ایبسٹریکشن. تو اسٹوڈنٹ ایبسٹریکشن کا مطلب ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں صرف ان ڈیٹیلز کو کیپچر کرنا جو کرنٹ پرسپیکٹیو سے امپورٹنٹ ہیں. تو اسٹوڈنٹ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو کرنٹ پرسپیکٹیو سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو ایبسٹریکشن کا کانسیپٹ ہے ہمیں مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. یہاں پر آپ کو اگزامپل دی گئی ہے. علی ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بی ایس کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا بھی ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے کتنے پرسپیکٹیو ہیں؟ اس کے 2 پرسپیکٹیو ہیں. نمبر 1 پر ہے اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو اور نمبر 2 پر ہے ٹیچر پرسپیکٹیو. تو اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں اس کے اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو میں کیا آ جاتا ہے؟ اس کا نیم، اس کا رول نمبر، ایئر آف اسٹڈی، سی جی پی اے. اور اگر ہم اس کے بیہیویئرز دیکھیں تو اس کے اندر اسٹڈی، گیو ایگزام، پلے اسپورٹ. اس طرح اسٹوڈنٹ اگر ہم اس کا ٹیچر پرسپیکٹیو دیکھیں تو نیم، اور نیم کے اندر کیا آ جائے گا؟ امپ آئی ڈی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ رول نمبر تو اس کا ڈیزگنیشن آ جائے گا، اور ایئر آف اسٹڈی مطلب اس کی ایج، سیلری. اور اس کے اگر ہم پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو سی جی پی اے کے پرسپیکٹیو میں ہمارے پاس ایج آ جائے گا. تو اسٹوڈنٹ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف ان چیزوں کو کلیکٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو کیچ کرتے ہیں جو ہمارے کرنٹ پرسپیکٹیو سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس کے ہمارے پاس بہت ایڈوانٹیجز. سب سے پہلے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. پرابلم سولونگ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری اپروچ ارریلیونٹ نہیں ہوتی. جو ارریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے سے ہی ہائڈ کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم سنگل پرسپیکٹیو پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آزادی ہوتی ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن کو چینج کر سکتے ہیں کسی ادر اسپیکٹ سے. اگر ہم کسی اور آبجیکٹ کے اسپیکٹ سے اسے چینج کرنا چاہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہ ایم سی کیو صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انکیپسولیشن ابسٹریکشن از یوزڈ فار انفارمیشن ہائڈنگ. تو انکیپسولیشن ابسٹریکشن بھی ہم انفارمیشن ہائڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں.
इसके बाद क्लासेस। तो स्टूडेंट क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि ये एक स्केच है या प्रोटोटाइप है या फिर मैप है। तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि डैश स्केलेटन और प्रोटोटाइप और मैप, तो वो क्या है हमारे पास क्लास। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप एक्सिबिट आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्लास के अंदर तमाम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन उनके अपना डेटा होता है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको एग्जांपल में समझाया गया, जैसे कि अली स्टडी करता है मैथ, अली भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अनम वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या स्टडी करती है, फिजिक्स। तो स्टूडेंट बेसिकली ये इन तमाम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये तमाम लोग क्या है, इंसान हैं या फिर पर्सन है। और स्टूडेंट इनकी अपना डेटा क्या हो सकता है, जैसे अली का डेटा मैथमेटिक्स, अनम का फिजिक्स और सोहेल का केमिस्ट्री। इसके बाद स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे कि हम क्लास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो हम क्लास को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट ये आपने एज अ सिंटैक्स हमेशा याद रखना है कि नंबर 1 वाले बॉक्स पर जो हमारे पास होता है वो है क्लास का नेम, सेकंड पर एट्रीब्यूट और थर्ड पर हमारे पास ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर सर्कल लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे पास क्लास का नेम है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और ये हमारे पास क्या है, ऑपरेशंस हैं। तो अगर हम सर्कल देखें, सर्कल हमारी क्लास का नाम है, इसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, उसका सेंटर, उसका रेडियस, और इसके हमारे पास ऑपरेशन क्या है, जैसे ड्रॉ करना, जैसे एरिया कंप्यूट करना। इसी तरह हमारे पर्सन के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, पर्सन क्लास के नेम, एज, जेंडर और इसके ऑपरेशन ईट एंड वॉक। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट जैसे कि तमाम जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उनकी अपनी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपके पास बहुत सारी जो खुसूसियात हैं आपने अपने वालिदैन से ली हैं और इसके साथ साथ आपकी अपनी भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपका दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और एग्जामिनर का फेवरेट भी है। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा गया है आपसे कि अगर बी क्लास इनहेरिट हुई है ए से तो इट कंटेन ऑल कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्लास ए, यानी कि अगर ए से बी बनी है तो जाहिर सी बात है बी के अंदर ए की खुसूसियात तो होंगी। जैसे कि आप अपनी मदर से इनहेरिटेड हैं, तो ये पक्की बात है कि आपके अंदर अपनी माँ की कुछ खुसूसियात होंगी। इसके बाद स्टूडेंट ये भी एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि पेरेंट क्लास को हम क्या कहते हैं। तो पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी कहते हैं, इसके साथ चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव क्लास कहते हैं। तो ये मैंने जैसे आपको पढ़ाया कि ड्राइव क्लास के पास अपनी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक तो होंगी, प्लस उसके अंदर अपने खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो बहुत यूनिक होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्सन हमारे पास क्लास है और ये पेरेंट है। स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास ड्राइव क्लास होती है वहाँ पर हमारी टेल होती है और जो हेड होता है वो हमेशा बेस क्लास की तरफ होता है। जैसे स्टूडेंट इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन, टीचर इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन एंड डॉक्टर इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन। इस तरह हमारे पास शेप होती है, लाइन की जो शेप, लाइन भी हमारे पास इनहेरिटेड है शेप से, सर्कल भी, और इस तरह ट्रायंगल भी शेप्स के साथ इनहेरिटेड है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का दी मोस्ट फेवरेट है। ये क्या है कि इनहेरिटेंस इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कैसे स्टूडेंट, इसे अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को पढ़ूं, इसे हम क्या इस तरह पढ़ सकते हैं कि स्टूडेंट इज अ काइंड ऑफ पर्सन। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह टीचर इज अ काइंड ऑफ पर्सन। इस तरह ये अगर हम पढ़े लाइन इज अ टाइप ऑफ शेप या इज अ काइंड ऑफ शेप, तो इसके अंदर हम इज अ काइंड ऑफ के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई। जैसे कि अब एक पर्सन है, पर्सन की क्लास के अंदर हमने एट्रीब्यूट बना लिए नेम, एज, जेंडर, इसके हमने ऑपरेशन बना लिए ईट एंड वॉक। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का नेम भी होगा, एज भी होगी, जेंडर भी होगा, प्लस उसकी ईट और वर्किंग का फंक्शन भी होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर आप देखें तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक्स्ट्रा जो उसकी यूनिक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी हैं, प्रोग्राम, स्टडी ईयर, स्टडी और हेल्ड एग्जाम। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर हम टीचर्स का देखें तो टीचर के अंदर ये सब तो मौजूद होगा क्योंकि ये इसकी पेरेंट क्लास है और इसके अंदर अपनी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि ड्राइव क्लास की अपनी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वो कौन है, डेजिग्नेशन, और इसके बाद हमारी सैलरी, टीचर की सैलरी, टीच और टेक उसके ऑपरेशंस हैं।
स्टूडेंट अब हमारे पास इनहेरिटेंस के फ़ायदे कौन से हैं, एडवांटेजेस कौन से हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले है रीयूजेबिलिटी, हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, हम उसी कोड को बार बार यूज़ करते रहते हैं। इसके बाद लेस रिडंडेंसी, जब हमने एक चीज़ को एक मेन कैटेगरी में रख लिया तो जाहिर सी बात है हमारी रिडंडेंसी कम होगी। रिडंडेंसी का मतलब है कि कन्फ्यूजन, ग्लिचेस जो आते हैं हमारी कोडिंग में वो बहुत कम हो जाएंगे, और उसके बाद हमारी मेंटेनेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जाता है, और लेक्चर नंबर 4 में भी आपको इसका रीकैप दिया गया है कि मेन पर्पस जो इनहेरिटेंस का वो हमारे पास है रीयूजेबिलिटी। यहाँ पर भी स्टूडेंट वही आपको, जिस तरह मैंने आपको शेप का ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वही आपको दिया हुआ है। जैसे अब हम देखते हैं कि शेप की हमने क्लास बना ली जिसके अंदर कलर और कोड और इसके जो हमने ऑपरेशंस बनाए हैं वो है ड्रॉ, रोटेट एंड सेट कलर। तो जैसे हमारे पास सर्कल है तो सर्कल की ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक होंगी, और इसके साथ साथ इसका ड्रॉ का अपना फंक्शन भी हो सकता है और कंप्यूट एरिया का फंक्शन हो सकता है, जो कि इसकी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो आइए चलते हैं हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर स्टार्ट में हमारे पास इनहेरिटेंस का रीकैप है, जिसमें बयान किया गया है कि ड्राइव क्लासेस इनहेरिट होती हैं बेस क्लासेस से। ड्राइव क्लासेस के अंदर बेस क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ कुछ अपनी भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और इसके बाद है कि इनहेरिटेंस का हमारे पास मेजर बेनिफिट ये है कि हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जनरलाइजेशन, तो जनरलाइजेशन का मतलब है आम करना, अमूमी तौर पर स्टूडेंट ये ऊपर से नीचे जाने वाला अमल है, यानी कि बॉटम टू टॉप। तो स्टूडेंट इसमें हम ये करते हैं कि हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाली क्लास को एक स्पेसिफिक क्लास में चेंज कर देते हैं। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे मॉडल में बहुत सारी क्लासेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ बिहेवियर्स कॉमन होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट टीचर और डॉक्टर की क्लासेस को देखें तो इनमें कॉमन क्या है, इन सब में नेम, एज, जेंडर कॉमन है और सब ईट, वॉक करते हैं। तो ये इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या कॉमन बिहेवियर्स हो गए। तो स्टूडेंट जनरलाइजेशन कहती है कि बजाय इसके हम मुश्तरका कोड यानी कि नेम, एज, ईट, वॉक बार बार तीनों क्लासों में लिखें, जिससे हमारा कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, रिडंडेंसी पैदा हो सकती है। इससे अच्छा है कि हम इन तमाम क्लासेस को निकाल कर एक बहुत ज़्यादा जनरल सी क्लास में डाल दें। तो स्टूडेंट इन तीनों के लिए अगर हम कोई क्लास बनाएं तो हम उसका नाम शेप रख सकते हैं, इसका नाम हम पर्सन रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये देखें स्टूडेंट, जिस तरह अब स्टूडेंट के अंदर भी यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेम, एज, जेंडर, ईट, वॉक, और टीचर के अंदर भी सेम है और डॉक्टर के अंदर भी सेम है। तो बजाय इसके कि हम इन सब को अलग-अलग लिखिए, हमने एक ही कॉमन क्लास बना दी और इसके अंदर इसको प्रिस्क्राइब कर दिया। ये एमसीक्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरलाइजेशन तब की जाती है जब इनके दरमियान इस काइंड का फंक्शन हो, यानी कि आसान अल्फाज में स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, यानी कि स्टूडेंट एक किस्म का पर्सन है। इस तरह यहाँ पर ऊपर आपको सर्कल की एग्जांपल दी गई है, तो सर्कल इज़ अ काइंड ऑफ शेप। तो इन जनरलाइजेशन वही होगी जहाँ पर हमारे पास इस काइंड का रिलेशनशिप होगा। इसके बाद स्टूडेंट सब टाइपिंग यानी कि एक्सटेंशन, सबसे पहली बात कि ये हमारी टॉप टू बॉटम एक्ट करती है और इसका मतलब है एक्सटेंड कर देना। स्टूडेंट ये हमारे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से टोटली डिफरेंट है, ये हमारी जनरलाइजेशन का उलट है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, वो है बिहेवियरली कंपैटिबल। तो स्टूडेंट बिहेवियरली कंपैटिबल का मतलब ये है कि हम अपनी बेस क्लास को ड्राइव क्लास के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट, जैसे कि हमने ऊपर ही देख लिया कि इसका मतलब एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन मतलब कि किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर देना। अगर आप देखें तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये हमारे पास शेप है, तो शेप और यहाँ पर है हमारे पास पर्सन। स्टूडेंट जिस तरह अब सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारे पास कलर भी होगा, वर्टिसेस भी होंगी, सेट कलर का फंक्शन भी होगा और मूव का भी होगा। तो स्टूडेंट क्या हम इस क्लास को इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर तो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से मौजूद हैं। तो अगर हम पर्सन देखें तो स्टूडेंट यहाँ पर पर्सन हमारी बेस क्लास है और ये हमारी कौन सी क्लास है? ड्राइव क्लास। तो हमने देखना है क्या हम अपनी ड्राइव क्लास
उसके अंदर बेस क्लास को रख सकते हैं? तो देखिए, नेम स्टूडेंट का भी एक नेम होता है, एज स्टूडेंट की भी एज होती है, जेंडर, ईट, वॉक, ये तमाम फंक्शंस हमारी ड्राइव क्लास के अंदर मौजूद हैं। तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस वजह से ये बिहेवियरली कंपैटिबल है। इसके बाद स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ कि हम जनरलाइजेशन को टॉप टू बॉटम देखते हैं और सब टाइपिंग को हम जनरलाइजेशन को हम टॉप टू बॉटम और हमारे पास जो एक्सटेंशन है उसे बॉटम टू टॉप देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट रिस्ट्रिक्शन, तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन में स्टूडेंट क्या होता है, ये हमारी ऊपर वाली कंडीशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि ये हमारी एक्सटेंशन के ऑपोजिट है। किस तरह स्टूडेंट, वो हमारे पास बिहेवियरली कंपैटिबल थी, ये बिहेवियरली इनकम्पैटिबल है, मीन्स दैट द ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली अनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास। तो इसका मतलब क्या है कि हम बेस क्लास को रिप्लेस नहीं कर सकते अपनी ड्राइव क्लास के साथ, क्योंकि ड्राइव क्लास के अंदर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्टेड करेक्टरिस्टिक मौजूद होंगी जो हमारी बेस क्लास के अंदर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, हमने एक क्लास बनाई जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया, हमने एट्रीब्यूट्स बनाए, एंटिटीज़, उसके अंदर ये हमने डिफाइन किया कि एज और एज की रेंज होगी 0 से 100 तक। इसके बाद हमने सेट एज का एक फंक्शन बना लिया। इसके बाद स्टूडेंट हमने इसकी एक ड्राइव क्लास बनाई, तो ड्राइव क्लास में हमने क्या लिखा कि एज होनी चाहिए 18 से 100 तक, और इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया सेट एज का जो ऊपर से ही हमने इनहेरिट किया है। तो स्टूडेंट अब देखें, बेस क्लास में 0 से 100 तक किया जा सकती है, जबकि ड्राइव क्लास में 18 से 100 तक। तो क्या हम बेस क्लास को ड्राइव क्लास के अंदर रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रहा। इसी रीज़न की वजह से हम इसे बिहेवियरली अनकम्पैटिबल कहते हैं और इसे हम रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह की अगर कोई सिनेरियो आ जाता है तो इसे हम डील कैसे करते हैं? इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ओवरराइडिंग का। तो ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? अ क्लास में नीड टू ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी ड्राइव क्लास बेस क्लास के जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसे यूज़ नहीं करती, बल्कि वो कहती है कि मैं अपना एक अलहदा से बिहेवियर बनाऊंगी। ये एग्जाम्पल के साथ स्टूडेंट मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप शेप देख रहे हैं, यहाँ पर शेप हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और इसके अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं कलर, वर्टिसेस, और स्टूडेंट इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो इसके बाद हमारा फंक्शन क्या है? मूव, सेट कलर। तो अगर हम देखें सर्कल, तो सर्कल में भी हमारे पास रेडियस है। इसके बाद यहाँ पर फिर से ड्रॉ है, यहाँ पर भी ड्रॉ है। तो स्टूडेंट ये डबल ड्रॉ क्यों आया? क्योंकि मे भी हो सकता है यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड किस्म का ड्राइंग का फंक्शन दे दिया हो। जैसे कि स्टूडेंट कोई भी हम रूल बना देते हैं कि हमारी जो शेप बनेगी उसे हमने किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सर्कल का ड्रॉ है तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेथड है, जैसे कि लाइंस को मीट करके हमने सर्कल बनाना है। इसके बाद स्टूडेंट ये ड्रा का अपना फंक्शन है। तो क्या होगा, जब हमारा फंक्शन रन करेगा तो हमारी बेस क्लास का जो फंक्शन है उसे ओवरराइड कर देगा हमारी ड्राइव क्लास का फंक्शन। जिस तरह स्टूडेंट अक्सर ये होता है कि हमारी डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि कुछ होते हैं बच्चे जो अपनी पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाते नहीं हैं, बल्कि वो एक नई तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये उसी की एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास इसके बाद हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट अब हमने ये देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट इस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई वजूद ना हो, ऐसी चीज़ें जिन्हें कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा था हमारी थिंकिंग। तो स्टूडेंट जैसे कि आप कहें कि वो धड़क रहा है या फिर वो सोच रहा है, तो स्टूडेंट क्या कोई बात जहन में आती है किससे सोच रहा है? तो जब तक कि हम ये नहीं कहते कि वो अपने माइंड में ये बात सोच रहा है, तब तक कि उसका मुकम्मल मानी हमारे समझ में नहीं आता। तो स्टूडेंट इसमें ये है कि द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड द क्लास वी मेक अगेंस्ट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ऐसी क्लासेस जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। और स्टूडेंट ये आपके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाती है
इसका कोई भी लॉजिक नहीं होता। इसके बाद स्टूडेंट मेन पर्पस इज़ टू इनहेरिटेड बाय द अदर। तो स्टूडेंट इसका सबसे मेन पर्पस ये है कि इससे दूसरी क्लासेस इनहेरिट करें। जिस तरह स्टूडेंट आप यही समझ सकते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट्स हैं जिनका मकसद है कि इनसे इनहेरिटेंस ली जाए। इसके बाद स्टूडेंट इसको हम इनिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके मीनिंग्स का नहीं पता होता, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होती है। और स्टूडेंट इसको हम रीयूजेबिलिटी के लिए प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें शेप, तो जैसे ही आप शेप देखते हैं तो स्टूडेंट क्या कोई लॉजिक आपके जहन में आती है? बिल्कुल भी नहीं। फिर आप कलर देखते हैं तो भाई किस चीज़ का कलर? शेप का कलर। तो जब शेप ही डिफाइन नहीं है तो उसका कलर कैसे डिफाइंड होगा? इसके बाद है वर्टिक्स। तो स्टूडेंट इससे भी कोई हमारे समझ में नहीं आती। तो स्टूडेंट उसके बाद हम कहते हैं सर्कल, तो फौरी हमें पता चलता है अच्छा शेप है सर्कल की और इसका कुछ कलर भी है। तो यही स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्क्रीट। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट एग्जिस्ट स्टैंड अलोन इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मॉडल है उसमें ये स्टैंड अलोन नहीं कर सकती अकेली। इसके बाद स्टूडेंट कंक्रीट क्लासेस, तो वही कॉन्सेप्ट कि ऐसी क्लासेस जो बेस क्लासेस को यूज़ करती हैं। कैसे स्टूडेंट? जो हमने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ी है उसके अंदर से कुछ करैक्टरिस्टिक्स ले रही होंगी प्लस उससे इनहेरिटेंस कर रही होंगी। तो स्टूडेंट ये कॉन्क्रीट क्लास इम्प्लीमेंट अ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, जो एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट को बनाती है। इसके बाद दीज आर यूज टू इनिशिएट द ऑब्जेक्ट इन आवर प्रोग्राम, ये हमारी ऑब्जेक्ट्स को इनिशिएट करती हैं। जिस तरह स्टूडेंट हमने कहा था कि सोचता है तो हमारे जहन में कुछ नहीं आया, फिर हमने कहा वो दिमाग से सोचता है। तो स्टूडेंट सोचता है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई और दिमाग से सोचता है तो इसमें दिमाग हमारे पास कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने ऊपर ही आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, जबकि टीचर स्टूडेंट डॉक्टर हमारे पास कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट ये भी आपके पास है, अ कॉन्क्रीट क्लास में एग्जिस्ट इन आ ऑब्जेक्ट मॉडल इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मॉडल में इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकती है। कैसे? अगर आप देखें स्टूडेंट, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये व्हीकल्स को नहीं देखते तो क्या ट्रक की क्लास अपने आप स्टैंड अलोन कर सकती है? तो बिल्कुल हम एक ट्रक के नाम से एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर उसकी कैपेसिटी और उसका लोड का जो फंक्शन है उसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो हमारी जो कंक्रीट क्लास है वो स्टैंड अलोन कर सकती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इसके बाद स्टूडेंट कॉन्क्रीट क्लासेस मोस्टली लाई बिलो द टॉप ऑफ द क्लास हायरार्की इन गुड ऑब्जेक्ट मॉडल। जो कॉन्क्रीट क्लासेस होती हैं उनको हम किसी भी हायरार्की में सबसे टॉप पर रखते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हायरार्कीज। लेक्चर नंबर 4 में हमने मल्टी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 3 में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें हमने देखा था कि एक ड्राइव क्लास दूसरी बेस क्लास से करैक्टरिस्टिक्स लेती है। तो यहाँ पर मल्टी का वर्ड आया तो मतलब एक ड्राइव क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लास से करैक्टरिस्टिक ले रही हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जैसे एक बच्चा है वो अपनी मदर प्लस अपने फादर से करैक्टरिस्टिक्स इनहेरेंट करता है। स्टूडेंट हमारे हैंड आउट में जल परी की एग्जांपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फ़िश भी है और इसके साथ साथ ये एक वुमेन भी है। तो मतलब इसके अंदर औरत की भी तमाम करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं और इसके अंदर फेरी टेल के भी करैक्टरिस्टिक मौजूद हैं। और इस स्टूडेंट इसके साथ साथ ये पानी के अंदर भी फ्लोट कर सकती है और ये औरत की तरह चल भी सकती है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो ये सारी कोडिंग है इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ से आप समझ सकते हैं हमारे पास एक मैरी माइड है जो वीमेन की तरह वॉक कर सकती है और इसके फंक्शन में ये शामिल है कि वो फिश की तरह स्विम भी कर सकती है। ये C++ का कोड है जो कि आपका एज इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लास बना दी गई है फिश में जिसका हमने पब्लिक फंक्शन बना दिया है स्विम, और इसके बाद हमें वुमेन की क्लास बना दी गई है जिसका हमने पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया है, वो है हमारे पास वॉक। तो स्टूडेंट इसके सी आउट में हम इसके मेथड्स को प्रिंट आउट करवा देंगे और स्विम के मेथड्स को हम फिश वाली क्लास के अंदर सी आउट करवा देंगे। तो स्टूडेंट ये आपकी कोडिंग पेपर में नहीं आएगी। यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दी गई है, वो आपके पास एक गाड़ी है जो ज़मीन पर भी चल सकती है और
वाटर के अंदर भी फ्लोट कर सकती है। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी दो फंक्शन है, जैसे कि स्टूडेंट सबसे पहले एक कार है वो हमारी लैंड व्हीकल है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बोट है वो वाटर व्हीकल है। तो स्टूडेंट ये है तो दोनों व्हीकल्स ही, और स्टूडेंट ये एक ही कार है जो दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। स्टूडेंट इसका हमारे पास फ़ायदा ये है कि हम एक ही वक्त में दो डिफरेंट तरह के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो हम उर्दू में कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तो स्टूडेंट अब हम इसके एडवांटेजेस देख सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट ये देखेंगे कि हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। मल्टी इनहेरिटेंस, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये हमें कोड को रीयूज़ करने के ज़राए बताती है। हम देखते हैं कि एक ही कोड को बार बार यूज़ करके मुख्तलिफ खसूसियात के साथ मिलाकर हम एक नई क्लास बना सकते हैं। तो स्टूडेंट जिस तरह इसके फ़ायदे हैं इसके नुकसानात भी हैं। सबसे पहले है इंक्रीज़ कॉम्प्लेक्सिटी, हमारी जो क्लासेस हैं वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है। कैसे स्टूडेंट, हमारा जो कंपाइलर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हमारी रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको ये गाड़ी की ही एग्जांपल दे रही थी कि वो फ्लोट भी कर रही है और वो ज़मीन पर भी चल रही है, तो इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। इसके बाद डुप्लीकेट फ़ीचर, क्योंकि उनके जो फीचर्स होते हैं वो सेम होते हैं, इस वजह से हमारा कंपाइलर बहुत कंफ्यूज हो जाता है जब हम एक ही वक्त पर उससे रिप्लाई मांगते हैं। स्टूडेंट सबसे जो फर्स्ट पर प्रॉब्लम हमें बयान की गई है वो है हमारे पास एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है? ये मसला तब पैदा होता है जब चाइल्ड क्लास दो ऐसी क्लास से विरासत लेती है जिनमें एक ही नाम का फंक्शन हो। कैसे स्टूडेंट? अगर हम वुमेन क्लास में देखें तो उसमें भी ईट का फंक्शन है और फिश क्लास में भी ईट का फंक्शन है। अब हमारी जो जल परी है इसकी क्लास में दोनों से ही विरासत लेती है। तो अब इसमें हमारे पास कन्फ्यूजन क्या होगी? अगर हमारी मैरीमाइड का ऑब्जेक्ट बनाकर हम मैरीमाइड डॉट ईट का फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर तो परेशान हो जाएगा, इसे समझ नहीं आएगा कि उसने वीमेन वाले ईट को कॉल करना है या फिर फिश वाले ईट को कॉल करना है। तो स्टूडेंट अब कोई भी जो प्रॉब्लम होता है तो उसका एक सोल्यूशन भी होता है। इसका हल ये है कि हम चाइल्ड क्लास में इस फंक्शन को ओवरराइड कर दें, यानी मैरामाइड में खुद ईट का फंक्शन बनाएं और फिर इस फंक्शन के अंदर के स्कोप में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए इसे वाज़े तौर पर बताएं कि वालिद के फंक्शन को कॉल करना है। आई होप सो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको डायग्राम से भी बताया गया है। सबसे पहले हम मैरीमाइड का हम इसका प्राइवेट में एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक में। तो स्टूडेंट इसको ओवरराइड क्या करेगा? हमारा वुमेन का जो ईट फंक्शन है वो इसे ओवरराइड करेगा हमारी पेरेंट वाली फंक्शन को, और अगर हम फिश वाला यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फिश वाला ओवरराइड करेगा पेरेंट वाले फंक्शन को। तो इस तरह हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पर आप कोडिंग में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने फिश की एक क्लास बनाई है जिसका हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया है ईट का। तो इसके बाद स्टूडेंट हमने विमेन की क्लास बनाई है जिसका अपना एक फंक्शन है, वो भी हमारे पास क्या है? ईट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन आ फिश ईट मेथड, और यहाँ पर हमने लिखा है इन वुमेन ईट मेथड। इसके बाद स्टूडेंट हमने मैरीमाइड की इसी फंक्शन को सी आउट करवाया है और स्पेसिफिक जो भी हमने फंक्शन देना था जैसे विमेन का या फिश का, उसे हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर सी आउट करवा दिया है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ सकती है, वो है टू इंस्टेंस फॉर सेम फंक्शन। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू इंस्टेंट फॉर सेम फंक्शन आपको लिख दिया जाता है इंडिकेट व्हाट प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है ये हमारे पास डायमंड प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। आसान अल्फाज में स्टूडेंट मैं आपको समझाती हूँ कि डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी है या एक घर है स्टूडेंट, वो आपको इनहेरिट हुआ है आपके वालिद से, और वही घर आपके वालिद और चचा को इनहेरिट हुआ है आपके ग्रैंडफादर से। मतलब ड्राइव क्लास ऐसी बेस क्लासेस से करैक्टरिस्टिक ले रही है जो पहले से किसी और क्लासेस से इनहेरिटेड है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। यानी कि अब आप देख सकते हैं एक कार है वो लैंड पर भी चलती है, यानी कि लैंड व्हीकल है, और बोट है जो वाटर पर भी चलती है। और स्टूडेंट ये हमारी वो कार है जो दोनों के फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टूडेंट अगर यहाँ पर एक फंक्शन है वो है चेंज गियर, तो जैसे ही ड्राइवर चेंज गियर का फंक्शन अप्लाई करता है तो स्टूडेंट हमारी जो कार है वो कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं लैंड वाले व्हीकल की
गियर को अप्लाई करना है या फिर वाटर वाले व्हीकल के गियर को अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट इस एम्बिग्यूटी को हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी है। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो हमारे पास दरमियानी क्लास है, जो लैंड क्लास है, वो हमारे जो ग्रैंड फादर यानी कि व्हीकल से, जबकि जो हमारी वाटर व्हीकल है वो किसी और वर्ड से विरासत हासिल कर ले। कैसे स्टूडेंट? हमारी जो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, जो हमारी लैंड क्लास है वो हमारी इस क्लास के अंदर से विरासत हासिल कर ले, जबकि जो हमारी वाटर क्लास है वो किसी और के अंदर से विरासत हासिल कर ले। जैसे कि हम सिंपल एक कार एक अदर बेस क्लास इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो इस तरह हमारा ये मसला सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट आपने जस्ट इनके एमसीक्यूज़ के लिहाज से तैयार करना है। इसके बाद जो आपका बेसिक और सबसे मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो है एसोसिएशन। तो हम देखते हैं हमारे पास एसोसिएशन क्या होती है। जब हम इनहेरेंट से हट कर ऑब्जेक्ट के दरमियान ताल्लुक़ को देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में ऑब्जेक्ट अकेले काम नहीं करते, वो काम मुकम्मल करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? एसोसिएशन कहलाता है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर हम काम डेलीगेट करते हैं तो इनके दरमियान क्या हो जाता है? एक एसोसिएशन हो जाता है। स्टूडेंट इसके अंदर डिफरेंट तरह की काइंड्स हैं। बेसिकली हम अपने हैंड आउट में 2 तरह के एग्जाम पढ़ते हैं एसोसिएशन के। ये एमसीक्यूज आपसे बहुत पूछा जाता है कि हम एसोसिएशन को कौन से सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसे विद आउट एरो हेड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एरो हेड के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास कौन सी काइंड्स हैं? देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ एसोसिएशन विच आर फर्दर सब डिवाइडेड। सबसे पहले हमारे पास है क्लास एसोसिएशन और दूसरी है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, और इनको फर्दर हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लास एसोसिएशन में हम क्या पढ़ते हैं? क्लास एसोसिएशन इज इम्प्लीमेंटेड इन द टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्लास एसोसिएशन है इसे हम इनहेरिटेंस की टर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, रिलेशनशिप बिटवीन दैम, यानी कि इनके दरमियान स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम ये पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो इस का फंक्शन होगा इसके साथ, और अगर हम प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेड इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट ये दी मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज एग्जामिनर का आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस ए का कौन सा रिलेशनशिप यूज़ करते हैं हम? इसमें हम पब्लिक केस में यूज़ करते हैं, और इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप किस में यूज़ करते हैं हम? ये प्राइवेट इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एसोसिएशन 2 मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस हैं जो स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट्स हैं। ये स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह स्टूडेंट हमने वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो इसमें हम बेसिकली इसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं? इसके फर्दर 3 टाइप हैं। सबसे पहले है सिंपल एसोसिएशन, नंबर 2 पर है कंपोजिशन, और नंबर 3 पर है एग्रीगेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल एसोसिएशन में क्या होता है। स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट के दरमियान सबसे वीकेस्ट ताल्लुक है, और ये आपके एग्जामिनर का बहुत फेवरेट किस्म का एमसीक्यूज है, और आपके क्विज में भी बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो सबसे वीकेस्ट है। तो वो हमारे पास सिंपल एसोसिएशन है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से एक बहुत इंट्रिंसिक रिलेशनशिप में नहीं होते। ये सिर्फ एक रेफरेंस है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे से बात कर सकता है। जैसे स्टूडेंट अली हाउस, तो अली लीव्स इन हाउस। तो स्टूडेंट इसके बाद है अली, तो अली ड्राइव्स a car. It is generally a association instead of simple association, kind of सिंपल एसोसिएशन। तो स्टूडेंट इसके अंदर बहुत कोई ख़ास किस्म का इनकी इंट्रिंसिक्शंस नहीं होती। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेगेशन। तो नेगेशन के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, 1 वे एसोसिएशन और 2 वे एसोसिएशन। 1 वे एसोसिएशन में हम क्या करते हैं? इन 1 वे एसोसिएशन वी कैन नेगेट अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन ओनली। हम नेगेट कर सकते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में, जिस तरह नाम से ही जाहिर है, और जो हमारा डोनेटेड एरो हेड होगा वो सर्वर के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कि स्टूडेंट ये देखिए, हमारा जो एरो हेड है वो हमारे सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद है 2 वे एसोसिएशन। तो 2 वे में हम दोनों तरफ
एसोसिएट कर सकते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक लाइन से जो दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान एसोसिएट करती है दोनों ऑब्जेक्ट को एक लाइन के थ्रू। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यासिर इज़ अ फ्रेंड ऑफ अली एंड अली इज़ आल्सो अ फ्रेंड ऑफ यासिर। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कार, अली ड्राइव्स अ कार, तो स्टूडेंट इसकी हम बैकवर्ड कर सकते हैं क्या, हम ऐसे कर सकते हैं कार ड्राइव्स अली, तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पर आपने जैसे देखा यासिर अली का फ्रेंड है और अली यासिर का फ्रेंड है। इसके बाद स्टूडेंट काइंड्स ऑफ सिंपल एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू कार्डिनैलिटी, तो कार्डिनैलिटी के लिहाज से कितनी हमारे पास टाइप है, कार्डिनैलिटी की लिहाज से हमारे पास 3 टाइप हैं, बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन एंड एनरी एसोसिएशन। बाइनरी एसोसिएशन में हम क्या पढ़ते हैं, इट एसोसिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्जैक्टली 2 क्लासेस, ये 2 क्लासेस के ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करता है और इसे हम डोनेट करते हैं लाइन से, एरो से, इन दोनों के दरमियान एक एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट बनाकर। जैसे स्टूडेंट एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, तो स्टूडेंट इसमें अगर हम एसोसिएशन देखें तो हमारे पास एसोसिएशन हो रही है वर्क फोर्स से। इस तरह स्टूडेंट अगर हम इस एग्जांपल में देखें अली ड्राइव्स कार, तो इसके अंदर कौन सी 2 क्लासेस की एसोसिएशन हो रही है, ड्राइव से हमारे पास अली और कार के दरमियान एसोसिएशन हो रही है। तो इसे जिस तरह लफ्ज़ नाम से ही जाहिर है बाइनरी, तो यानी कि 2 क्लासेस होंगी और उनके दरमियान एसोसिएशन के लिए एक ऑब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जैसे वर्क फॉर, और सेकंड के लिए हमने ड्राइव का ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद है ट्रिनरी, तो स्टूडेंट ये ट्रिनरी यानी कि 3, तो इसमें एसोसिएशन हम ऑब्जेक्ट की करवाएंगे 3 क्लासेस के साथ, इसको हम डोनेट करते हैं, इट इज़ डोनेटेड बाय डायमंड साइन, तो इसे हम 3 लाइंस और डायमंड साइन के साथ डोनेट करते हैं। जैसे स्टूडेंट अब अगर आप देखें स्टूडेंट, कोर्स और टीचर, इन तीनों के दरमियान का जो एसोसिएशन है इसे हम एक डायमंड साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एनरी एसोसिएशन, तो एन एसोसिएशन बिटवीन 3 और मोर क्लासेस, इट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल आर वेरी रेयर, तो स्टूडेंट 3 से ज़्यादा क्लासेस के साथ जो एसोसिएशन होती है उसे हम एनरी एसोसिएशन कहते हैं, जो जिसके एग्जांपल्स हमें बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है हमें हैंडल करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट कंपोजिशन में हम देखते हैं कि ये एक बहुत मजबूत ताल्लुक है, ये पार्ट ऑफ का ताल्लुक जाहिर करता है। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन हमारे पास कौन सा ताल्लुक जाहिर करता है, तो कौन सा ताल्लुक जाहिर करता है, पार्ट ऑफ का, यानी कि एक हिस्सा है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ये हमारे पास जैसे अब इंसान है, अगर इंसान मर जाए तो क्या उसका जो सर है या उसका दिल है वो ज़िंदा रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो स्टूडेंट ये आपने हमेशा याद रखना है कि अगर होल मर जाए तो जो उसका हिस्सा है वो भी ज़िंदा नहीं रहेगा। स्टूडेंट ये आपके एमसीक्यूज़ हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन इज़ डैश रिलेशनशिप, तो वो क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि अगर एक मरता है तो दूसरा भी ज़िंदा नहीं रहता, एक तबाह होता है तो दूसरा भी तबाह हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट कंपोजिशन, तो स्टूडेंट ये कंपोजिशन में क्या होता है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर इन्हसार कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट इसे हम शो किसे करते हैं, इसे हम फील्ड डायमंड से शो करते हैं। ये एमसीक्यूज भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे किस तरह से डोनेट करते हैं। तो आपने याद रखना है कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन विद द फील्ड डायमंड हेड टूवर्ड द कंपोजर ऑब्जेक्ट, कंपोजर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, इंडिकेट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हेड है, तो हेड क्या है, कंपोजर, ठीक है, जो होल है यानी कि जो सबसे बड़ा पार्ट है वो अली है, तो अली का आर्म जो हेड है वो इसके साथ क्या कर रहा है, वो इसके साथ कंपोजिशन कर रहा है। और कंपोजर कौन है, अली। आर्म क्या है, कंपोजिशन कर रहा है, और कंपोजर कौन है, अली। इसके बाद स्टूडेंट बॉडी, लेग्स, यानी कि अगर अली खुदा ना खास्ता इससे कुछ होता है तो इसकी ये जो तमाम चीज़ें हैं वो डैमेज हो जाएंगी। इस तरह स्टूडेंट चेयर है तो चेयर के साथ भी आप यही एसोसिएशन देख सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद ये एमसीक्यूज में मैंने आपको कवर करवा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है एग्रीगेशन। तो स्टूडेंट एग्रीगेशन में हम देखते हैं कि ये ताल्लुक भी, ये भी एक ताल्लुक है लेकिन कंपोजिशन से वीक है। तो स्टूडेंट ये
हमारे पास रिलेशन तो है लेकिन कंपोजिशन से वीक होता है। इसके अंदर हैज़ ए का रिलेशनशिप हम देखते हैं। स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अपनी कलेक्शन रखता है। आसान अल्फाज में स्टूडेंट, अगर एक कंटेनर तबाह हो जाए तो हिस्सा फिर भी आज़ादाना तौर पर रह सकता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, जिस तरह हमारा रूम और चेयर, अगर कमरा गिरा दिया जाए तो चेयर यानी कि एग्रीगेट ऑब्जेक्ट फिर भी मौजूद रहेगी और इसे किसी दूसरे कमरे में रख दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इसके साथ इसके रिलेशन तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। जैसे कि स्टूडेंट अब रूम है, रूम के अंदर हमारे पास बेड होता है और इसके अंदर चेयर होती हैं, कबोर्ड होता है और इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारा टेबल होता है। तो स्टूडेंट अगर हम देखें इसका आपस में रिलेशन तो है लेकिन इसके रिलेशन को एग्रीगेट करना बहुत आसान है। कैसे? हम अपने बेड को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह टेबल को भी कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। और आप ये बात हमेशा याद रखें कि यहाँ पर जो एग्रीगेशन है उसे हम एम्प्टी डायमंड सैम्बल से शो करते हैं। ठीक है, जो हमने कंपोजिशन पढ़ी उसे हम फील्ड डायमंड से शो करते हैं और इसे हम एम्प्टी अनफिल्ड डायमंड के साथ शो करते हैं। और इसके जो एरो हेड्स होते हैं हमारे पास वो कंटेनर की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट जिस तरह अब ये गार्डन्स हैं और प्लांट्स हैं, तो हमारे पास सबसे जो मेन है वो हमारे पास क्या है? गार्डन। ठीक है, तो गार्डन कंपोजर है या कंटेनर है और इसके अंदर प्लांट्स क्या है? प्लांट्स हमारे एग्रीगेट कर रहे हैं। अगर हम अपने गार्डन में से प्लांट्स को अलहदा करें तो हम कर सकते हैं और ये बहुत इजीली हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट ये भी हमने पढ़ लिया कि एक वीक रिलेशनशिप है और ये एक दूसरे के बाद एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसे तैयार कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हैंड आउट है, उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। इसके बहुत जल्द मैं आपकी नेक्स्ट 5 चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।